ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم واهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں آدم علیہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو چنا، ان کا تذکرہ باعث خیر، ان کی زندگی باعث خیر، ان کی اتباع باعث رحمت، ان کی باتوں کو ماننا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا. اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ کہ تمام انبیاء کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات مقدس ہیں، احترام والی ہیں. صحابہ جب بھی یہ لفظ کہا جائے گا یا کہا جاتا ہے، ہمیں ایک تعریف جو پڑھائی گئی، جو سکھائی گئی کتابوں میں، وہ یاد آتی ہے. وہ یہ کہ کسی بھی شخص کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے زمانے میں آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ کی صحبت اختیار کرنا،
وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا کتابوں میں، آپ نے بھی سنا ہوگا، اتنی تعریف صحابہ کی کر کر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور درمیان میں کہتے رہتے ہیں کہ صحابہ عوام کچھ جون تک نہیں رہتی، اور عوام غوث و قطب اور ولی فلاں 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 کی زندگی کے پیچھے پڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی زندگیاں نہیں سنانا چاہیے، غوث و قطب کی اولیاء کی قربانیاں نہیں سنانا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کی زندگیوں کے بارے میں، جن کے ایمان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول گواہی دیں، جن کے اعمال، جن کے طریقوں کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی دے، اس سے بڑھ کر شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ صحابہ کون ہیں، صحابی کسے کہا جاتا ہے، ان کا درجہ کیا ہے۔ اسی لیے آج ہر غیرہ نتو خیرہ فلاں فلاں ایک گلی کا ایک ولی بن کر پھر رہا ہے۔ اب اس گلی کی ولی کی کرامت پر ہم واویلا مچا رہے ہیں، ہنگامے مچا رہے ہیں، جبکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت موجود تھے۔ اتنے صحابہ اور ان صحابہ کا مقام ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اور اسی لیے بعض وہ افراد جنہوں نے کسی ایک صحابی کو پکڑ لیا، وہ دوسرے صحابیوں پر تبرہ کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند فرماتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں مت دو۔ کیوں صحابہ کو گالیاں نہ دیں؟ کیا وجہ ہے؟ تو خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلِمَقَامِ أَحَدٍ هُمْ سَاعَةٌ، کہ ان کا ایک مقام جو ایک لمحے کا مقام ہے، یعنی مع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے جو ایک لمحہ، ایک منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ بتایا، اور نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ معمولی صحابی نہیں۔ ہمیں فلاں بزرگ کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، فلاں کی داڑھی میں ہیرے نظر آتے ہیں، فلاں کی پگڑی میں نور نظر آتا ہے۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے چہروں کو سجایا تھا، اپنی آنکھوں کو سجایا تھا، آپ کی باتوں کو سن کر اپنے کانوں کو سجایا تھا، سوارا تھا، اپنے اخلاق کو سوارا تھا۔ ان کے قربانیاں بہت دور کی بات، ان کا دیکھنا، ان کا صحبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ میں تو بارہا کہتا ہوں کہ اس مٹی کے بنے ہوئے افراد نہیں تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والے افراد۔ جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو واقعی صحابہ اس مٹی کے بنے ہوئے نہیں، انہیں یہاں کسی مٹی سے بنایا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اصطفاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا لنبی علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے ان کو چھانٹا گیا، ان کو نکالا گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ذریت میں، آدم کے بچوں میں ان کو نکالا اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بننے کے لیے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چنا ہو، جس کا چننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، جس کو چھاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ مثال کے طور پر میں بتاؤں، ابھی SIR چل رہا ہے، ہندوستانی جاننے کے لیے، ہندوستانی پہچاننے کے لیے
اسے ڈاکیومنٹ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد اسے ہندوستانی تبدیل ہوتا نہیں ہوتا معلوم نہیں، بہت سارے ڈاکیومنٹ ہندوستانی حکومت دے کر ہمیں پاسپورٹ دی ہے، صاف سیدھا کہہ دیا گیا کہ یہ پاسپورٹ ہندوستان کی شہریت کے لیے ثابت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، کہہ دیا منسٹر نے۔ اور آدھار کارڈ وہ کسی اور کے لیے ہے، پین کارڈ، ٹیکس بنے، خود ایشو کرنے والی چیزوں سے مکرنے والی حکومتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان افراد کو چنا ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے چنا، حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا، ورنہ ایسا نہ ہوتا کہ مکے میں رہنے والا سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور بہت سارے کفار مکہ مالدار تھے، خوبصورت تھے، سرداری ان کے پاس تھی، زبانیں ان کے پاس تھی، عربی دان تھے، عرب اچھا بولنے والے تھے، اشعار بولا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر اشعار میں ہجو کیا کرتے تھے، ان کی زبان پر ان کے فخر تھا، وہ جو اشعار کہتے تھے ان کی باتوں پر ان کو فخر تھا۔ کہاں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا تھا سہیل رومی کو، روم سے نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کے دربار میں آئے، ایمان لائے، صحابیت کا درجہ پایا۔ اٹھا کر دیکھیں وہی ہے ابو لہب، کسے کہا جاتا ہے ابو لہب؟ لہب کہتے ہیں چنگاری کو، ابو کہتے ہیں باپ کو، عربی میں ابو لہب جو کہتے ہیں وہ چنگاری کے باپ کو کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے تھے کہ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، ابو لہب اتنا گورا تھا کہ دھوپ میں نکلتا تو لال ہو جاتا۔ اس کے لال پن کو دیکھ کر عرب کہنے لگے کہ چنگاریوں کا باپ ہے، یہ آگ کا باپ ہے، اس کا چہرہ اتنا گورا ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابل کا کوئی نہیں ہے۔ ابو لہب کہا گیا، ایک طرف خوبصورت نبی علیہ السلام کے خاندان کا، ایک طرف سردار ہے مکے کا، ایک طرف مکے کا کعبۃ اللہ کا سردار ہے، اور دوسری طرف کالا کلوٹا بلال ہے۔ سرداری نہیں ہے، غلامیت ہے، عرب نہیں ہے، عجمی ہے، حبشی ہے، حبشہ سے آیا ہوا ہے۔ کبھی ابو جہل کے پیر دبانے والا، کبھی امیہ بن خلف کے گوبر کو غلاظت کو لے جا کر پھینکنے والا، اس کے گھر میں کام کرنے والا بلال خدا کو پسند آتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلال کو نبی علیہ السلام کے دربار میں لاتے ہیں، اور لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیتے ہیں کہ ابو لہب تیرا کوئی مقام نہیں، ابو جہل تیرا کوئی مقام نہیں، عتبہ تیرا کوئی مقام نہیں، شیبہ تیرا کوئی مقام نہیں، مقام ہے تو کالے کلوٹے بلال کا مقام ہے۔ حبشہ سے آیا ہے لیکن میری نبی کی پیروی کے لیے میں نے بلال کو چنا۔ اللہ چنے ہیں صحابہ کو، اور آج صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی ہم تقریر ہو سکتے ہیں؟ آج صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، میں فلاں خانقاہ چلاتا ہوں، میں چند اپنے مرید کھوکھلے مریدوں کو رکھ کر زندگی بسر کرتا ہوں، اور کھوکھلے مریدوں کے تحفوں پر پلنے والے بھکاری پیٹ پر ہوں۔ وہ صحابہ کی زندگیوں کو پر تبرہ کرتے اور پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ سنتے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے صرف صحابہ کے بارے میں یہی سنا کہ صحابہ کیا ہے؟ وہ ایمان لائے نبی علیہ السلام کے دور میں تھے اس لیے صحابی کہا گیا؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں صحابہ نے جو عرض کیا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ روکتے کھڑے کرنے کا مقام ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ انہوں نے ایک لمحہ مہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک لمحہ گزارا ہے، کوئی کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ایم ایل اے کے ساتھ آج گزارے، ایم پی کے ساتھ آج گزارے، روزگار کے ساتھ آج ایک لمحہ گزارے، اور کیا کہتے ہیں پی ایم وغیرہ کے ساتھ ایک لمحہ گزارے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اکڑ کر پھرتے نہیں پھرتے، ان کی زندگیوں کا حال، ان کے طریقے ایسے ہیں کہ وہ اب سارے محلے کے روزگار ہیں، اس لیے کہ میرا تعلق ایم ایل اے کے ساتھ ہے، میرا تعلق ایم پی کے ساتھ ہے، میں فلاں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔ اپنے دکان میں تصویر ہے ان کی لگا لیتے ہیں، میں ایم ایل اے کے ساتھ ہوں، اسے بات کرنے سے پہلے محلے کے افراد 100 بار سوچتے نہیں سوچتے، جبکہ جو تعلق رکھا ہے وہ حرام کرنے والا، غریب کا کھانے والا، غریب کے پیسے لوٹنے والا، اور غریبوں کو دبا کر رکھنے والا، مالداروں کی جوتیاں چاٹنے والا حرام خور ہے۔ ایک حرام خور دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، دو حرام خوروں کی تصویریں محلے میں لگا کر سارے محلے پر روب دبا رہا ہے، مسجدوں پر اس کا روب چل رہا ہے، مدرسوں پر اس کا روب چل رہا ہے۔ بیت المال کو کیا تعلق؟ میرا تعلق ایم ایل اے کے ساتھ ہے، میرا کا تعلق فلاں حرامی کے ساتھ ہے، فلاں غریبوں کے کھانے والے، فلاں غریبوں کے پیسے نپٹانے والے کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ ایک
सनदें क्या है सहाबा की? कौन सहाबा? हम कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने वाले, यही ना कहते हम लोग? ये सुना हमें उलमा यही बताए, हमारी तकरीरों में यही कहा गया, हमें यही समझा सब नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और नबी अलैहिस्सलाम की तो नहीं। सहाबा कौन है? सहाबा अल्लाह तबारक व तआला से पूछे कौन है? कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। क्या कहता है सहाबा? मुनाफिकीन को कहता है, कुफ्फार मक्का से कहता है, क़यामत तक आने वाले हर फर्द से कहता है फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाए। कैसे ईमान लाना? मिसाल देना ना, हम बच्चों को कहते हैं देख मुझे पढ़ा है, उसकी तरह पढ़ कर आ। वो कहता है देख फलां मालदार बन गया, तू भी उसकी तरह मालदार बन। फलां दुकान खोला है, तू भी उसकी तरह दुकान खोल। फलां गाड़ी लिया है, तू भी उसकी तरह गाड़ी ले। फलां ने शादी बड़ी धूमधाम से की है, तू भी धूमधाम से कर। देख फलां को हम मिसाल बनाते हैं। खुदा जो सारी दुनिया चलाता है, जमीन जिसकी, आसमान जिसका, समंदर जिसका, जमीन जिसकी, तमाम दुनिया जिसकी, चांदो सूरज जिसके, अंबिया जिसने बनाए, औलिया जिसने बनाए, अतकिया जिसने बनाए, वो खुदा मिसाल अगर देने पर आए, वो खुदा किसी के ईमान के बारे में बताने पर आए, वो खुदा सारी दुनिया के कुफ्फार को ये कहने पर आ जाए कि फ़इन आमनू, अगर तुम ईमान लाते चलाए हो तो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, उन अफराद की तरह ईमान लाओ जो अफराद नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में है। पूरे मुफस्सिरीन ने, तमाम मुफस्सिरीन ने यही लिखा बिमिस्लि मा आमनतुम बिही से मुराद सहाबा है। खुदा शान बयान कर रहा है सहाबा की। ईमान कैसा? सहाबी कौन? नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में आने वाले, हाँ सहाबी हैं, लेकिन जिनके ईमान की मिसाल खुदा दे, जिनके ईमान की मिसाल खुदा दे के ईमान लाना हो तो अबू बकर की तरह लाओ, ईमान लाना हो उमर की तरह लाओ, ईमान लाना हो उस्मान की तरह लाओ, ईमान लाना हो अहले बैत की तरह लाओ, ईमान लाना हो अशरा मुबशरा की तरह लाओ। हमारी तरह तीतर और बटर का ईमान नहीं। वो मुरीद तोहफे ला कर दिया, उसे करीब बिठा लिए, वो मुरीद तोहफे नहीं ला कर दिया, उसे दूर बिठा दिए, उसके घर को जाते हैं ना हमारे शेखों का हाल। आजकल जो खाते चलाने वाले हैं इनका हाल क्या है? पैसे उड़ाने वाले, फुला उड़ाने वाले, उठाकर देखें नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा क्या थे, कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला और एक जगह मुनाफिकीन के बारे में कहते हैं, कहता है इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास। कुर्बान वो खुदा उनके ईमान की तारीफ करे, और खुदा तारीफ क्यों नहीं करेगा जबकि वो चुना, वो चुनकर सहाबी बनाया है, उसने सहाबियत का मकाम अता किया है। और सहाबियत का मकाम क्या हमें मालूम नहीं। सहाबा किसे कहते हैं? इसलिए अजहर ऐरा गैरा नहीं लदत्तो खैरा उठता है, वो फर्द भी उठता है जो अब तैयार जिसे पढ़ने में हुआ नहीं हुआ। चंद महीने पहले एक फर्द लहर पढ़ने में उठा और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला पर बकने लगा, गालियां देने लगा, और अल्लाह हिफाजत फरमाए उसने समझाई नहीं कि सहाबी किसे कहा जाए। सहाबा कौन मालूम ही नहीं। अल्लाह मुनाफिकीन को कह रहा है कि वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, कमा आमन अन्नास, जैसे कि सहाबा ईमान लाए। कैसा ईमान लाए? उनका ईमान लाना हमारे ईमान की तरह नहीं। हमारे अच्छे अच्छे उलमा, अच्छे अच्छे अत्किया, जिसे तुम गौस कहते हो, जिसे तुम कुतुब कहते हो, जिसने सारी जिंदगी पलक झपकने के बराबर नाफरमानी की हो ना, नाफरमानी ना की हो खुदा की, जिसे सारी दुनिया वली कहे, हाथ उठाए तो दुआ कबूल हो जाए, खुदा के कसम मिंबर रसूल पर बैठकर कहता हूं, ऐसे हजारों कुतुब सहाबा की जूती को भी नहीं पहुंच। सहाबी हो, मैं अबू बकर की बात नहीं कर रहा, मैं उमर की बात नहीं कर रहा, मैं अहले बैत की बात नहीं कर रहा, मैं अशरा मुबशरा की बात नहीं, मैं अदना सहाबी की बात कर रहा हूं। सहाबा में भी दर्जा है, मैं बताऊंगा, कभी अर्ज करूंगा, सहाबा में भी मकाम है, कौन पहले कौन बाद में मकाम है। क्यों? कहा आपकी ऐसा कहती है कि उनकी जूती उनके बराबर नहीं हो सकते। आइए बताता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सहाबा कह रहे हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि सहाबा को गालियां मत दो, इसलिए कि उनका एक लम्हे का जो मकाम है, फली मकाम अहदिन हम साथ, कि उनके एक सहाबी का वो मकाम जो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक लम्हा गुजारा,
ली अहदिन 40 सनतन। कुर्बान हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। समझे सहाबा कौन है? सहाबा के बारे में बोलने से पहले डरे। सहाबा आज ऐरा गैरा मत्तुखरा बैठकर कह देता है, कहने के लिए क्या है? उन्हें अजमतें मालूम नहीं, उन्हें रफाकतें मालूम नहीं, उन्हें ताल्लुक मालूम नहीं, उन्हें ताल्लुक महल्ला मालूम नहीं। खुदा उनके ईमान की गवाही देने वाला, खुदा कुरान में ऐलान करने वाला कि मैं उस दिन से राजी हो गया। रज़ियल्लाहु अन्हु का क्या मतलब? मैं राजी हो तो नहीं, आइंदा चलकर होता नहीं होता मालूम नहीं, मैं क्या हो गया? राजी हो गया। और सहाबा भी अल्लाह से राजी हो। कैसे राजी? हमारी तरह आधे तीतर आधे बटेर नहीं। पहली सब पे नमाज पढ़ने वाला बेटी की शादी में नमाज छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ने वाला गीबत कर रहा है, ऐसा नहीं है। सहाबा का मकाम और मर्तबा क्या था मालूम? सहाबा हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कोई आयत नाजिल होती है हुक्म की, एक आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। एक आयत नाजिल हुई कि अल्लाह के नबी की आवाज से बढ़कर कोई आवाज ना हो। कैसा ईमान लाना? मुतयन नहीं कि उसके लिए कहा गया हो। कैस इब्न साबित इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु तआला साहिब रसूल है, जिनकी आवाज बुलंद थी, ऊंची थी। अचानक मस्जिद नबवी को आना बंद कर दिया, टिका दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक सहाबी नहीं आ रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, कहाँ है साबित कैसे शम्मास? नजर नहीं आ रहा। कहा कि अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं। कहा कि इत्तला मालूम करो। कहा कि मदीने के बाहर है। सहाबा जाकर पूछे तो कहा कि अल्लाह के नबी की आयत नाजिल हुई है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, कि नबी की आवाज से बढ़कर तुम अपनी आवाज बुलंद मत करो। यहां हमें मालूम है गुनाह क्या, हमें मालूम है गुनाह कर रहे हैं, हमें मालूम है गुनाह का एक एक गुनाह गिनाते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे टीवी हो, चाहे बेपर्दगी हो, चाहे सूदी कारोबार हो, चाहे धोखा देना नहीं हो रहा, वादा खिलाफी हो, तमाम चीजें हमें मालूम है गुनाह है, गुनाह कर रहे हैं। हमें मालूम है कि आयत हमारे लिए नाज़िल हुई है, गुनाह कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हदीस हमारे नहीं हो रहा। समझाने के, चलो नहीं समझ में आया एक अलग बात है, समझाने के बाद कितने अफराद ऐसे यहाँ भी मैं सत्य कहते हैं सत्य फलां फलां अरबी खुतबे के दरमियान बात करते हुए आपको नजर आएंगे। कौन है? मस्जिद में आने वाला मुसलमान है, दाढ़ी छोड़कर आया है, क्या है? अल्लाह के नबी का कौल है कि अरबी खुतबे में बात ना करें, मैं करूंगा, कोई क्या करेगा? ये मुसलमानियत। फिर भी हमारे उसे कहे गुस्सा आ जाए, हाँ मध्य हजरत बोले मेरी दाढ़ी नहीं देखे, तो तेरी दाढ़ी और मुसलमानियत पर अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तेरा सर ना झुकता हो, मेरा कौल नहीं, मेरे बाप का कौल नहीं, अगर आका और खुदा के अहकामात पर सर ना झुके और इत्तिबा में हमारा दिल ना लगे, ऐसी जिंदगी जानवरों से बदतर। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कलअनआम बल हुम अज़ल। एक तरफ सहाबा की मिसाल देना हो तो अल्लाह ने कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, क्या कहा? फ़क़द इह्तदौ, जो ईमान लाएंगे सहाबा की तरह वो हिदायत पर आ जाएंगे। फ़क़द इह्तदौ, उन्होंने हिदायत पा लिया। क्या कहा? ईमान कैसा लाएंगे? सहाबा की तरह अगर ईमान लाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, अगर वैसा ईमान लाए, कोई पूछेगा क्या मिलेगा, हजरत ऐसा ईमान लाएंगे। खुदा सर्टिफिकेट दे रहा है, खुदा सनद दे रहा है, खुदा यहाँ की तरह नहीं कि आपको सनद देकर छीन ली जाए। पासपोर्ट दिया, छीन लिया गया कि ये तुम्हारी शहरियत का सबूत नहीं, आधार कार्ड दिया, छीन लिया गया कि तुम्हारा सबूत नहीं। अगर तुम सहाबा की तरफ आज भी ईमान लाओगे, क्या मिलेगा? कुरान ऐलान कर रहा है, कुरान सर्टिफिकेट दे रहा है, कुरान वादा कर रहा है और अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। फ़क़द इह्तदौ, अल्लाह ने कह दिया अगर वैसा ईमान लाओगे तो समझ लो कि हिदायत पा गए। अभी हिदायत पाएंगे नहीं, सामने हिदायत मिलेगी भी नहीं। क्या किया तुमने? हिदायत पा लिया। कैसा ईमान? हमारी तरह नहीं कि कहा जाए कि अरबी खुतबे के दरमियान मसाजिद के जिम्मेदार बात करते नहीं करते। मैं हर मरतबा कहता हूं कि
पहली सब में बैठ जाए, हिस्सा खत्म। कोई पूछे तो कहते हैं कि हम इंतजाम जितने करने थे कर दिया, आपको जल्दी आकर बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ, हम क्या करें। लेकिन कोई इतनी हिम्मत से कहने के लिए ना तैयार है, खुदा के हिकमत को पहचानने और बोलने के लिए कोई तैयार नहीं, मानने के लिए कोई तैयार नहीं। और सहाबा पर कहने छोड़ो हज़रत, सहाबा पर इतना बोल रहे, आप क्यों परेशान हो रहे। इस ईमान को बचाने के लिए तुम्हारे बाप ने घर बनने के लिए उतनी कुर्बानी नहीं दी होगी, तुम्हारे बाप ने मोहल्ला बनाने के लिए उतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को पालने के लिए उतनी कुर्बानियां नहीं दी होंगी। ईमान के बचाने के लिए सहाबा के बच्चों ने जो कुर्बानियां, सहाबा नहीं, सहाबा की बीवियों ने जो कुर्बानियां दी है ना, आज तुम्हारी बेटियां बेहया बनकर निकलती हैं, हमारी माएं बगैर पर्दे के निकलती हैं, हमारी बीवियां बगैर पर्दे के निकलती हैं। कुर्बान सहाबा पर उठाकर देखे, ये सहाबा जंग उहद के बाद, एक जंग के बाद फरमाते हैं, एक सहाबी आती है, पूरा पर्दा कर आई है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दरबार में हाजिर हुई है और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम, मेरा बेटा शहीद हो गया है। पूछ रही है, क्या शहीद हो गया? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हाँ शहीद हो गया, उसे जन्नत मिलेगी। उठकर जाने लगी। सहाबा में से किसी ने पूछा, तेरा बेटा शहीद हुआ है, तूने बुर्का नहीं छोड़ा? सहाबिया ने कहा, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा इस्लाम शहीद नहीं हुआ, मेरा ईमान नहीं गया, मेरा इस्लाम नहीं गया, मेरा कुरान नहीं गया। बेटा शहीद हो तो पर्दा लाजिम, शादी हो रही है पर्दा लाजिम। और आज अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी, कौन पूछने वाला, कौन करने वाला। इसीलिए तो हमारी नस्लों में सहाबा के गालियां देने वाले, सहाबा पर एतराज करने वाले पैदा हो रहे, नहीं हो रहे। मालूम ही नहीं सहाबा कौन है, सहाबा की जिंदगियां क्या है, सहाबा क्या समझते थे अपने आप को मालूम भी नहीं अफराद। मैं तो जब भी सहाबा के वाक़यात की किताबें उठाकर पढ़ता हूं, नींद आती है तो खत्म हो जाती है और पढ़ने शुरू होता है तो डर लगने लगता है कि ये इस दुनिया के बने हुए अफराद थे या कोई और अफराद। नबी की बात पर जो यकीन था ना, आज के कुतुब कुत्ता यकीन नहीं, आज के उत्ते बली को यकीन नहीं। खुदा की कसम कहता हूं मैं, मस्जिद में बैठकर फैन के नीचे एसियों में बैठकर आराम से कहें कि हम ईमान लाए, सजदा करते हुए कहें हम ईमान लाए, नबी की बात पर ईमान लाए। जब दुकान को जाए, धोखा देने का मौका आया तो हम धोखा नहीं देते, ग़ीबत करने का मौका है, बड़े बड़े दाढ़िया वालों को ग़ीबत करते हुए हमने देखा है, बड़े बड़े उलमा को ग़ीबत करते हुए देखा है, ओहदे के लिए आपस में लड़ते हुए नहीं देखा हमने। हाँ, हमारा सहाबा क्या थे, उठाकर देखे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की जिंदगियां इतनी पाक, इतनी सफा, एसियों के नीचे नहीं। कुफ्फार आए, खंदक का मौका, जंगे खंदक में गड़ा खोदा गया, खंदक जो कहते हैं ना, गड़ा खोदा गया मदीने के अतराफ, कुफ्फार उधर से ना आए हमला करने के लिए, बड़ी खतरनाक जंग। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा एक तरफ, बीच में बड़ा चट्टान आ गया। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, पत्थर आ गया है, नहीं फूट रहा। उस दौर में बुलडोजर का, बमों का दौर नहीं के रखो, उड़ा दो, आकर नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, जंग भी कैसी अजीब। साहब आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, भूख से बहुत परेशानी है, हमने अपने पेटों पर पत्थर बांध लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा उठाकर दिखाया तो दो दो पत्थर थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला उसी जंग में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10 अफराद को मेरे घर ले आए, मेरे घर में कुछ खाना है, ये भूखे सहाबा को मैं देख नहीं सकता, आप खा लें। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, चलो चले। सहाबा ने गिना तो 70 अफराद थे। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अंदर परेशान थे कि तो मैं तो 10 की दावत दिया था, ये 70 आ गए, कैसा होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हांडी इधर लाओ, मैं क्या कर दूंगा। हांडी का चमचा ऊपर से बर्तन नहीं हटाया, खाल कर देने शुरू किया, बर्तनों में डालना शुरू किया। 70 अफराद पेट भरकर खा लिए। जंग का आलम बता रहा हूं, वो जंग। पत्थर आ गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया गया, अल्लाह के नबी पत्थर आ गया है। मेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आकर पत्थर पर एक हथौड़ा मारते हैं तो पत्थर फूट जाता है, फूटते हुए चिंगारियां निकलती। अल्लाह के नबी चिंगारियों को देखकर मुस्कुराते हैं।
चिंगारियां निकली। चिंगारियां देखकर अल्लाह के नबी ने मुस्कुराया। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने क्यों मुस्कुराया? साहबा पूछते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या? अल्लाह के नबी क्यों? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इन चिंगारियों में मुझे यमन को, शाम को, इराक को फतह होते हुए देखा। क्या दिखा रहा है? हालत कौन सी? फैन की नहीं, एसी की नहीं, कारपेट की नहीं। अगर मैं अब यहाँ कहूँ कि फलस्तीन फतह हो जाए, पहले हमारे मोहल्ले का ऐसा देखो तुम्हें बोलेंगे नहीं बोले? पहले यहाँ के मुसलमानों की जान बचाओ, बात फलस्तीन का किस्सा, पहले यहाँ के अपने के शहरी का डॉक्यूमेंट बनवा रहा हूँ, बात दूसरे अफराद का किस्सा। सहाबा देखें जिनके पेट पर पत्थर बंधे हों, ईमान किसे अल्लाह ताला ने जो फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, जो फरमाया पेट भरे हुए नहीं, मैं अच्छा हूं इसलिए पंजोक्ता नमाज पढ़ रहा हूं, मैं अच्छा हूं इसलिए दिन पर काम कर रहा हूं, मेरा बेटा मर गया तो इशा भी गई, फजर भी गई, इसे दीनदारी नहीं कहा जाता, इसे इस्लाम नहीं कहा जाता। शादी हुई 5 नमाजें गायब, इसे इस्लाम नहीं कहा जाता। शादी में बैठकर बेहयाई पर बातें, इसे इस्लाम पर नहीं कहा जाता। इस्लाम किसे कहा जाता है? ईमान लाना किसे कहा जाता है? मैं बार क्यों कहता हूं कि सहाबा हमारी मिट्टी के नहीं थे, हम तो एक पढ़ना। आप देखें आखिर में आते हैं, फैन निकाले हुए तो हंगामा अरबी खुतबे के दरमियान, वहां फैन डालो, फैन के नीचे बगैर फैन के इधर बैठने भी हम ना, हमारा हाल, हमारा ईमान का, हम मस्जिद से निकलते ही कहा मस्जिद में थोड़ी देर बैठने की भी तौफीक नहीं। बैठेंगे, जुम्मा है सूरह कहफ पढ़ेंगे, पहले आएंगे जुम्मा है सूरह कहफ पढ़ेंगे, या 100 मरतबा दरूद नबी अलैहिस्सलाम पर जुम्मा है बैठकर मस्जिद में पढ़ेंगे। घर में तो पढ़ने का माहौल नहीं, दुकानों में पढ़ने का माहौल नहीं, जो पढ़ते हैं उनको मैं सलाम करता हूं। वरना अक्सर हमारा क्या है, हमारा ना सूरह कहफ पढ़ने का, ना दरूद शरीफ पढ़ने का। जुम्मा में जल्दी आकर दरूद शरीफ पढ़े, अपने घर में बच्चों को याद दिलाए कि आज जुम्मा है, दरूद पढ़ना है। बताएं आप कितने अफराद को पूछूंगा, शायद 2-3 के सिवा कोई हाथ नहीं उठाएगा। पढ़े हम उठाए, हमारा ईमान, फजीलतें हमें मालूम, अहादीस हमें मालूम। हमें आजकल तो सुन्नतों पर अमल करने के लिए पढ़ा लिखा जो तबका है वो ये पूछता है कि हजरत ये सुन्नत पर अमल करे तो दुनियावी फायदा क्या? नमाज पढ़े तो एक्सरसाइज हो जाती कहता ना, फिर जाकर जुम्मा क्या जम कर लो, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। नमाज को एक्सरसाइज की नीयत से नहीं आना, नमाज को इस नियत से आना कि मेरा सर खुदा के दरबार में झुकेगा। दोनों में फर्क है नहीं, दोनों में फर्क। एक है खतना कराना, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नहीं आज के दौर में डॉक्टर बोल रहा है इसलिए कराना, सवाब नहीं मिलेगा। और सहाबा जो ईमान लाते थे ना, वो ईमान लाना ऐसा नहीं कि क्या वजह नहीं, पेट पर पत्थर बांधे, फाका गला खुदा है, खाने के लिए तरस रहे, परेशान है, पूरे सहाबा परेशान है, वहां कीमे लगाकर है, कौन काफी कम मार देगा मालूम नहीं। उस हालत में पत्थर मारते हैं, चिंगारियां निकलती है, और चिंगारियों में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कौन सी हालत में? पेट भरकर बिरयानी नहीं, पेट पर पत्थर बंधा हुआ, सामने कुफ्फार मक्का का डर कि कब हमला कर देंगे मालूम नहीं, जंग सामने है, और अल्लाह के नबी बशारत किसकी दे रहे हैं? फर्क समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यमन, शाम, इराक, फलस्तीन, अल्लाह के नबी ने फरमाया यमन शाम के फतह होते हुए मुझे दिखाया गया इन चिंगारियों में। सहाबा उसी लम्हे बोला नहीं कि अल्लाह के नबी पहले जंग देखेंगे, हम होते तो कहते पहले जंग देखेंगे, बाद यमन शाम की बातें बोलते नहीं बोलते। ये हमारा ईमान, ये हमारी तरबियत, ये हमारे हालात, ये हमारा दिल कहता है। सहाबा नहीं पेट पर पत्थर बांधे, अल्लाह के नबी ये आपकी वजह से बांधे हैं। आपने इन हालात में कहा है कि अभी फतह मक्का नहीं हुआ, अभी कुफ्फार मक्का का डर है सहाबा के दिलों में, अभी कुफ्फार के हमला करने का डर है सहाबा के दिलों में, अभी कुफ्फार परेशान कर रहे हैं सहाबा को, अभी जजीरतुल अरब से इस्लाम बाहर नहीं गया, अभी मदीने से मक्के को भी इस्लाम नहीं आया, अभी मक्का फतह नहीं हुआ, अभी सुलह हुदैबिया नहीं हुई, कुछ भी नहीं। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते यमन शाम फतह होगा। सहाबा कहते हैं आमन्ना वसल्लमना, अल्लाह के नबी हम ईमान लाए, हमने तस्लीम कर। ये समझ में आता सहाबा का ईमान लाना हम जैसे अक्लमंदों को नहीं समझ। इतनी सब चीजें रहकर हमें हदीस सुनाई जाए,
सर तब भी पूछते हैं हम लोग, हो क्या सही में अमल करना चाहिए, नमाज पढ़ना चाहिए, नहीं पूछते, दाढ़ी छोड़ना चाहिए, टीवी कर डालना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना, पूछते नहीं पूछते। ये जर्रा कर ले तो क्या भी नहीं होता सर, जर्रा सूदी कारोबार कर ले तो चलता नहीं, पूछते नहीं पूछते। वो भी 10 उलमा को पूछते हैं, 11वां कौन तो भी मुंह कर रहा है तो कहते क्या कहते हो, एक मौलाना बोले बाप, यहाँ 10 जने जो बोले नहीं नहीं कर उसे सुनने के लिए हमें तैयार। हमारा ईमान, हमारे ईमान के बारे में कहा जाए कि जुम्मा में बैठो और सूरह कहफ पढ़ो, दज्जाली फितनों से बचोगे। सूरह कहफ का कुछ क्या अपना मालूम 10-15 मेरा हो भी नेक गुमान 10-15 को मालूम होगा, उसके अलावा वो 10-15 भी नहीं रहेगा शायद। मुझे पूछूं क्या, मैं किसी तो उठा को बताओ सूरह कहफ कहाँ है, कौन से पारे में है, क्या फजीलत है, हमें मालूम ही नहीं, हमारा ईमान ही नहीं ना। एक आदमी लॉकर के बारे में कह दिया कि लॉकर अच्छा, घर को लाकर वो लॉक डालते हम लोग कि चोरी ना हो, सुनना डालते नहीं डालते, गोदरेज का लाकर इसकी फुला फजीलतें हैं, इसके एडवर्टाइज दिखाया गया और तेरे नबी ने फरमाया कि सूरह कहफ पढ़े तो दज्जाल के फितनों से बचेंगे, लेकिन सूरह कहफ पढ़ने के लिए हम तैयार। हमारा ईमान और सहाबा के ईमान में फर्क ये है कि हम सोच समझ कर ईमान लाते हैं, सहाबा बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे समझे। आयत नाजिल हुई, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, हजरत कैस इब्न साबित शम्मास के लिए आयत नहीं थी, आना बंद कर दिया। पूछा गया कि क्यों, कहा कि मेरी आवाज बुलंद है, मैं बात करूंगा कहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से ज्यादा मेरी आवाज ना हो जाए, फिर अल्लाह ताला मेरे अमाल को गारत ना डर। आज बुरे को जाने वालों को पूछो, उम्रे में जाकर हंगामा, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के पास आवाजें, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के पास मोबाइल निकालकर हंगामा, क्या तो बोले, क्या हजरत गुस्से में बोला, गुस्से में नहीं बोलता, पूरे होश में बोलता। मुझे मालूम है कि कौन सा जुमला क्यों इस्तेमाल कर रहा, अफसोस है। और बोलने वाला कौन, जो अपने आप को दीनदार कहलाकर मोहल्ले में फिरता है। तेरी दीनदारी को एक मर्तबा हदीस के जरिए चक्कर आकर देख, फिर तेरे अंदर से कुफ्र निकलेगा। नबी की अहादीस पर अगर शक करता है, नबी अलैहिस्सलाम के रोजे के पास जाकर बेअदबी करने पर अगर तुझे चप्पल की मार ना पड़े और तू उस पर गुस्सा होता है, तो फिर अपने ईमान को कभी अहादीस और कुरान की आयतों के जरिए चक्कर आकर देख, तेरे अंदर से एक काफिर फिरौन निकलेगा, कारून निकलेगा, शद्दाद निकलेगा, तेरे अंदर से एक अबू जहल निकलेगा, उतबा निकलेगा, जो नबी के खिलाफ काम कर रहा। तू चेहरा बनाकर मोहल्ले वालों को धोखा दे सकता है, उलमा को धोखा दे सकता है, जाहिलों को धोखा दे सकता है, दुनियादारों को धोखा दे सकता है, खुदा व रसूल को और फरिश्तों को धोखा नहीं दे सकता। देखे सहाबा आए नहीं, आवाज बड़ी थी, अल्लाह के नबी ने बुलाया और बुलाकर तसल्ली दी कि ऐसे शम्मास, ये आयत आपके लिए नहीं बल्कि कुफ्फार के लिए, मुनाफिकीन के लिए है, जो नबी अलैहिस्सलाम की आवाज से ज्यादा बढ़कर आवाज करते थे, उनके लिए आयत उतरी है। ये आयत किसके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं। सहाबा ये थे ईमान लाए, इसी को कहा गया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द। कैसा ईमान लाते थे, मुनाफिकीन से पूछेंगे, कुरान ने बताया वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास। मुनाफिकीन ने मदीना से कहा गया कि तुम ईमान लाओ उस तरह जैसा कि वो ईमान लाए, कमा आमनन नास। नास की जगह में तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जैसे सहाबा ईमान लाए। क्या कहा मुनाफिकीन ने, क़ालू अनुमिन, मुनाफिकीन कह रहे हैं, आखिर कहते ना हमें क्या वैसे पुराने बन जाना, क्या सहाबा की तरह बन जाना, क्या मेरी दाढ़ी नहीं कटा तो स्मार्ट नहीं दिखता, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा नहीं लगा तो मैं स्मार्ट नहीं। भाग में जाए तेरे जानवर की जिंदगी। जिस फिल्म स्टार, जिस बेहया हरामखोर की इत्तिबा कर तूने अपनी जिंदगी को जहन्नम बना लिया, तेरी जिंदगी जहन्नम बनकर रहेगी, यहां भी बनेगी, क़यामत में भी बनेगी। जो कुरान और हदीस को छोड़ा
मुनाफिकीन से पूछे, क़ालू वनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। मुनाफिकीन ने कहा, क्या हम ईमान ले आए? अनुमिन, क्या हम ईमान ले आए? कमा आमन अस्सुफ़हा, जैसे के बेवकूफ ईमान ले आए। सहाबा के ईमान लाने को वो लोग क्या कहते थे? सहाबा के ईमान लाने को वो लोग नहीं, हाँ आज के दौर के अक्लमंद भी यही कहते हैं। ऐसा ईमान लाए, ऐसा ईमान, मार खा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। समय सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बूढ़ी है, 60 साल की, 70 साल की बूढ़ी है। अबू जहल पैर पर हाथ बांधकर हाथ बांधकर उनको पूछ रहा है, सुमैया खाली सिर्फ इतना कर ले तू कि मोहम्मद के दीन से फिर जा, तेरी ये जान बख्श दी जाएगी, तेरी जान। ये सियार के बहाने पर नमाजें भी हम छोड़ रहे हैं। ये सियार को लेन से कर रहे हैं, कभी जुम्मा को आपको लेन से करने की हमारी मस्जिद की तरफ लेन भी नहीं देखे हमें। देखिए हमारा हाल बता रहा हूं, नहीं करना कहा हजरत इससे जाकर करो, मुझे क्या ताल्लुक है, इससे करा लो। अल्लाह के दरबार में भी कभी इसी तरह आ जाओ, लाइन बनकर मसाजिद में आने की, पहली सफ पे बैठने की लड़ाई हो, दूसरी सफ पे बैठने की लड़ाई हो, मस्जिद से निकलते वक्त लड़ाई कि कौन सा पैर निकले, कौन पहले निकलता है, देखें कौन कितनी देर मस्जिद में रहता है, देखें। ये तो कॉम्पिटिशन ही नहीं ना हमारे पास दीन का कोई कॉम्पिटिशन। ये सियार जिसका हो गया, उन्हें तो जन्नत का परवाना हाथ में मिले सका, सीधा हाथ में नाम अमल दे, मेरा होगा वैसे। अरे तुम्हारा क्या हाल पूछ रहे नहीं? कभी अल्लाह ताला से पूछे कि अल्लाह मेरे ईमान का ऐसा यार हुआ, मेरा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ऐसा यार हुआ? अल्लाह मुझे कब ऐसा यार की तरह जन्नत की सर्टिफिकेट दुनिया में मिलेगी? खुदा कहता है कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, हमारा इस्यार का यही है कि तुम्हारा ईमान सहाबा की ईमान की तरह हो जाए, तुम्हारा ईमान सहाबा की तरह आ जाए, और दुनिया के बेवकूफ अफराद, दुनिया के पालने वाले, दुनिया के चाटने वाले, जूतियां चाटने वाले तुम्हारे ईमान को देखकर कहें कि अफराद बेवकूफ है, जिस तरह सहाबा को कहा था, क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, क्या हम ईमान ले आए इन बेवकूफों की तरह? सहाबा को बताकर सहाबा कैसा ईमान लाए? ऐसा ईमान लाए कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला मक्के में ईमान लाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़र अभी अपने ईमान का ऐलान मत करो। क्या बोलकर बेच रहे हैं? समझ आ रहा बोलो, हम ना खाली बोल रहे हजरत, जब हजरत बोले तुम्हें जरा अपने ईमान को छुपाओ रखो, इसलिए दाढ़ी भी कटा लेते हैं घर के सामने, वो जय श्री राम का झंडा लगाना एक ही बाकी रहता। आज के दौर में बहुत मुश्किल है ईमान लाना, ईमान पर चलना। कौन बेवकूफ बोला? पर्दा करना मुश्किल है। क्यों? हमारी घर की औरतें मर गई। हलाल पर चलना, क्या हम लोग मर गए? बताएं आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला के हाथों पैर बांधे गए। हज़रत सुमैया से कहा गया कि चलो बोल दो कि मैंने मोहम्मद के दीन को छोड़ दिया। हज़रत सुमैया ने फरमाया, ईमान कैसा? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम। सुमैया की तरह हो। 80 साल बूढ़ी नौजवान लड़की ने आजकल तो मदरसों में पढ़ना बच्चों के लिए आजाद बनाकर छोड़ दिया माँ बाप। नहीं, और माँ बाप बनाने नहीं, उन्हें RSS बजरंग दल फलां का नहीं, वो सब कई को मदरसे में 3 मेरा मदरसा है ना, 5 से 9:30 तक बिठाते हैं, 3.5-4 घंटे बिठाते हैं। मुसलमान कहते हैं हजरत इतना हो क्या करते हैं? कभी गुस्सा आता हमारे बाबा की कहानियां पढ़ा कर बोलना। मुसलमान कहते हैं कुरान पढ़ने वाले बच्चों, स्कूल सुबह 9 बजे जाकर 3:30 तक आता है, कोई पूछा नहीं, कोई नहीं पूछा। फिर ट्यूशन को 2 घंटे देता है, कोई नहीं पूछा। कुरान पढ़ने की बारी आई, हदीस पढ़ने की बारी आई, कुरान हिफ्ज़ करने, सब कई को हजरत इतना देर पढ़ाते। हजरत को अक्ल नहीं, मुझे बोल कर गए, हजरत को अक्ल नहीं, इतना और बिठा लेते हैं बच्चों। अफसोस होता है आपको बताऊं, जिस जगह मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, रोजाना जाकर मेरा बच्चा मदरसे की वजह से टीचर के पास ताने सुनकर आता है। वो टीचर में कहने को मुसलमान, सिर्फ वो मदरसे में 5
से 7:30 तक बैठता है, इसलिए उसकी टीचर प्रेशर कर रही है कि नहीं तुझे स्पेशल क्लास में बैठना। ये कौन कर रहे हैं? फर्क समझ में आ रहा? कौन कर रहे हैं? मुसलमान जिनको कहा जाता। कुरान पढ़ने से दूर करने की कोशिश कौन कर रहा है? मुसलमान। यहां हाथ पैर नहीं बांधे, अबू जहल नहीं खड़ा, बेनेजा लेकर नहीं खड़ा, पर देखो ऐसे ही करते रहो। क्या हुआ गुजरात में हालत मालूम? 2 दिन पहले से नाफिज हुआ है गुजरात में, दाढ़ी छोड़ना जुर्म, एतेकाफ करना जुर्म, सलाम करना जुर्म। तुम्हारा सलाम करने मुंह को लकवा मार दिया। मैं सच कह रहा हूं, बुरा समझे तो बुरा समझो, हाथ उठाकर जाते, अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया, अस्सलामु अलैकुम जबान से कहा है। अफसुस सलाम बैनकुम फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि आपस में सलाम आम करो, जोर से बोलो। अब लोग लग गई पाबंदी। सलाम करना गुजरात में गुनाह है, ले जाकर जेल में डाल दिया जाए। दाढ़ी छोड़ना गुनाह है, छोड़ेंगे तो क्या? पहले सुनते थे कहीं फ्रांस में यहाँ गरीब आ गया, और थोड़े दिन सब्र करो, इंशाल्लाह आपके मोहल्ले में गांव में भी आएगा, आपके शहर में भी आएगा। निकाब डालना हराम बना दिया गया। देखो अब अफसोस करेंगे तो फायदा नहीं, अभी भी वक्त है, संभलो, सुधरो, सहाबा की तरह ईमान लाओ, डट भी जाओ कि हमारा क्या कहते खून का कतरा जब तक रहेगा, कुफ्फार जितना सता दे हम ईमान पर डटे रहेंगे, हम ईमान पर बाकी रहेंगे। हमारी जबान से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नारे लगेंगे। हमारी सिर्फ जबान से नहीं, हमारे आमाल से भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें जाहिर होंगी। हमारे सजदों से खुदा के अहकामात के अमल की पैरवी मालूम होगी। ये बताएंगे हम दुनिया को जब तक आहद नहीं करेंगे। याद रखें, तुम्हारे औरतों से बुर्का छीन लिया जाएगा, तुम्हारे चेहरों से दाढ़ी छीन ली जाएगी, तुम्हें सलाम करने भी नहीं दिया जाएगा। नाफिज हो गया, उठाकर पढ़ने वाले पढ़ो, आप देख लो, पेपर आप पढ़ रहे हैं, न्यूज आपको मालूम, व्हाट्सएप आपको मालूम, फेसबुक आपको मालूम, तमाम गुजरात में नाफिज कर दिया गया। अब थोड़ी देर सब्र करें, 1-2-3 इलेक्शन, उसके बाद देखें क्या हाल होगा। तुम्हारी दाढ़ियां पकड़कर काटी जाएंगी, हमारी दाढ़ी, हमारे उलमा को जेलों में भर्ती कर दिया जाएगा जो समझा रहे हैं। अगर नहीं समझोगे तो याद रखो कि हमारा हाल वही है जिसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक ना रहेगी दास्तान। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह गुजरात के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इससे पहले कि दाढ़ी पर पाबंदी हो, सब अपने चेहरों पर दाढ़ी सजाओ, सजाएंगे। इससे पहले कि मसाजिद के दरवाजे हुकूमत की तरफ से बंद कर दिया जाए, तुम मस्जिदों में आकर बैठने की कोशिश करो, नमाज से 10-15 मिनट पहले आओ, कुरान पढ़ने की कोशिश करो। 2 सफ़े कुरान रोजाना पढ़ोगे, आधा पारा हो जाएगा। फजर की नमाज में 2 सफ़े, जोहर में 2 सफ़े, असर बात का कुरान बैठो। हर नमाज के बाद 1 तस्बीह, 1 मरतबा कलिमे की तस्बीह हो जाए, जोहर में दरूद की तस्बीह हो जाए, असर में तीसरे कलिमे की हो जाए, मगरिब में इस्तग़फ़ार की हो जाए, फिर शाम में 1 मरतबा दरूद की तस्बीह। नहीं पढ़ सकते मस्जिद में, इतना बैठ कर नहीं पढ़ सकते। फिर हम मुसलमान बाहर खाकर घंटों बात करने होता है, मस्जिद में बैठे क्या हुआ? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? बैठने की कोशिश करो। ये अल्लाह का घर है, बाजार और गलियां शैतान के घर हैं। वहां तुम्हारे ईमान को खरीद कर तुम्हें जहन्नम की तरफ कर दिया जाता है। यहां तुम बैठे रहोगे, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करें, बैठेंगे, पढ़ेंगे मसाजिद में, कुरान पढ़ने की आवाज जोर से पढ़ा करें। खुशी हो जहां कुरान पढ़ा जा रहा हो, कुरान सुना जा रहा हो और कुरान की तिलावत की जा रही हो। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही मानों में अमल की तौफीक अता फरमाए। आइंदा जुमा अर्ज करूंगा कि सहाबा कैसा ईमान लाया करते थे, उनका ईमान की, उनकी ईमान की हालत क्या थी, वो एक बार ईमान ला लेते तो कैसे जमते थे, और हमारा हाल क्या है, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मस्जिद के चंदे का ऐलान, आप हजरात से गुजारिश है, जाते हुए मस्जिद के लिए चंदा देते हुए जाएं। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।